Hello everyone, good morning to the 24th capsule. Just 7 minutes daily to success in grammar, words and comprehension. Grammar and usage tip. Both Mohan as well as Sohan are intelligent. Looks a very small sentence. Both Mohan as well as Sohan are intelligent. Let us pay attention to both and as well as. What are the rules regarding them? We can use Mohan as well as Sohan. And verb agrees with Mohan. Please understand, when I say A as well as B, verb has to agree only with A. If I say the teacher as well as the students is on time, is right. Please understand, the teacher is a subject here and is agrees with the teacher. We don't agree the verb with the students. The teacher as well as the students is on time. So verb agrees with the subject before as well as. This is one use. Second, both Mohan and Sohan. In this case, we always use a plural verb. And both Mohan as well as Sohan is non-standard. It is not allowed. So both Mohan as well as Sohan is not allowed. We have to replace it with and. Both Mohan and Sohan are. R is right because we should use plural here. So error lies in B part. Both Mohan and Sohan are intelligent. Word of the day. Wedding ceremonies often include the exchange of dash rings to symbolize the couple's promises to each other. वैवाहिक समारोहों में अक्सर शामिल होता है अंगूठियों का आदान प्रदान, जो एक संकेत है जोड़े के एक दूसरे के प्रति किए गए संकल्पों का. देखते हैं ऑप्शंस. हरसूट का मतलब होता है हेयरी, बहुत बाल होना. एक्रीमोनियस, होस्टाइल, जब बहुत फ्रेंडली नहीं है आप, मन में नेगेटिविटी है, देन यू हैव acrimonious relations. Plaintive, very sorrowful, बहुत दुख से भरा हुआ, बहुत शोकग्रस्त. डेसिड्यूस आपने पढ़ा होगा बचपन में स्कूल डेज में. ऐसे प्लांट्स जो हर साल जिनके लीव्स झड़ जाती हैं और नए पत्ते हर साल आते हैं, उन्हें कहते हैं डेसिड्यूस. तो ईयरली चेंजेबल चीजों के लिए भी डेसिड्यूस इस्तेमाल किया जा सकता है. वोटिव, ऐसी कोई चीज जो किसी प्रॉमिस को इंडिकेट करे, प्रॉमिस के बतौर, एज ए सिंबल ऑफ प्रॉमिस. तो आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे दैट द बेस्ट ऑप्शन हियर इज वोटिव. These rings are votive. They symbolize the 7 promises the couple makes to each other. Right? So wedding ceremonies often include the exchange of votive rings to symbolize the couple's promises to each other. Comprehension of the day. Now this is slightly economical, business oriented, and I am very sure that you all understand कि हमारी एग्जाम्स में कई बार ऐसे आते हैं पैसेजेस जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस से जुड़े होते हैं, तो हमको ये सारी कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए. The just-in-time inventory concept also meant that they held the bare minimum quantity of components and other inputs, raw materials in their premises or warehouses. While this is excellent for cash flow management, after all, idle inventory ties up a lot of cash that could be used elsewhere. It also ensured that any disruption to the supply chain would bring manufacturing to a grinding halt. Taken from the New Indian Express, June 3rd, 2020. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक दो तरह का होता है, गुड्स का और कंपोनेंट्स का, औजारों का और वस्तुओं का. तो इस स्टॉक को कम से कम स्तर पर रखना कि आपका फ्लो काम का बिगड़े भी नहीं और ज्यादा स्टॉक भी ना करना पड़े, इस सिस्टम को कहते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी. कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट. पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, दैट इज कैश फ्लो मैनेजमेंट. आइडल इन्वेंट्री टाइज अप अ लॉट ऑफ कैश. आइडल मतलब सुस्त,
इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो बेकार काम नहीं आ रहा है, वो बहुत सारे पैसे को बांध कर रखता है। एक्स्ट्रा स्टॉक का मतलब होता है हम कैश का, नकदी का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम अकुशल प्रयोग कर रहे हैं कैश का। हमारा कैश बहुत सारा फालतू इधर उधर उलझा पड़ा है। डिसरप्शन टू द सप्लाई चेन। नाउ सप्लाई चेन इज ए वेरी गुड वर्ड। सप्लाई चेन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें माल सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाए। और डिसरप्शन क्या होता है भी, इसमें रुकावट डालना, इस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शंस डालना। जब सप्लाई चेन बिगड़ती है तो उसे कहेंगे डिसरप्शन टू द सप्लाई चेन। टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, टू ब्रिंग एनीथिंग और समथिंग टू ग्राइंडिंग हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को तुरंत रोक देना। अनएक्सपेक्टेडली एंड सडनली मतलब एकदम से रोकना जिसमें काफी नुकसान हो, उसे कहेंगे टू ब्रिंग समथिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। आइए पूरा पैसेज देखते हैं। द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट ऑल्सो मेंट दैट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, इस अवधारणा का यह अर्थ भी होता है कि दे हेल्ड द बेयर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ, उन्होंने अपने पास रखा था कम से कम मात्रा, मिनिमम क्वांटिटी किसकी, ऑफ कंपोनेंट्स एंड अदर इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स। कंपोनेंट्स औजार, दूसरे इनपुट्स और कच्चा माल। किसी फैक्ट्री में जो चीजें मशीनों में डाली जाती हैं उन्हें कहते हैं इनपुट्स और रॉ मटेरियल, और जो बाहर निकलता है उसे कहते हैं आउटपुट। लेकिन मशीनों के कुछ कंपोनेंट्स भी आपको अपने पास रखना पड़ते हैं। इन सब का हम कम से कम सामान रखें, कहां पर, इन देयर प्रीमाइसेस और वेयर हाउसेज, अपने परिसर में या अपने गोदाम में। वाइल दिस इज एक्सीलेंट फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट, अब जबकि यह चीज बहुत शानदार है कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, आपने कम से कम सामान रखा है तो आपका पैसा अच्छे से यूज हो रहा है। आफ्टर ऑल आइडल इन्वेंट्री टाइज अप अ लॉट ऑफ कैश, क्यों ना हो। यदि व्यर्थ माल रखोगे तो बहुत सारा पैसा व्यर्थ उलझ जाएगा। दैट कुड बी यूज एल्सवेयर, जिसका हम कहीं और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो एंश्योर्ड दैट एनी डिसरप्शन टू द सप्लाई चेन वुड ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू ग्राइंडिंग हॉल्ट, और इसने यह भी इंश्योर किया कि कोई भी डिसरप्शन की सप्लाई चेन में हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग तुरंत रुक जाएगी। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की अच्छी बात यह है कि स्टॉक कम होगा तो कैश फ्लो का अच्छा मैनेजमेंट होगा, लेकिन सप्लाई चेन आपको बहुत अच्छी रखना पड़ेगी, तभी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कर पाओगे। क्योंकि यदि आपने स्टॉक मिनिमम रखा है और सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हुआ तो पूरा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, बिकॉज माल होगा ही नहीं आपके पास। तो मतलब यह हुआ कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की सफलता डिपेंड करती है एक अच्छे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यह आपको बहुत सारे इकोनॉमिक और बिजनेस आर्टिकल्स को समझने में हेल्प करने वाली कॉन्सेप्ट है। देखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों इसमें ग्रामर भी है, वर्ड्स भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि यदि इसको आप नियम से देखते रहे तो इंग्लिश में सफलता मिलेगी। और हमारे देश में इंग्लिश में सफलता का मतलब होता है लाइफ में सफलता। ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे।